This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel is meant for educational purpose only. महंगाई इतनी बढ़ गई कि जीना थोड़ा मुश्किल है। मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप कोई बिजनेस खड़ा करते हैं, क्योंकि आप एक स्टूडेंट हैं, तो आप एक बिजनेस खड़ा कर सकते हैं शायद आने वाले कुछ समय में। और अगर आपकी, आई विल नॉट टेल यू अ वेरी बिटर ट्रूथ, बट दैट इज राइट, दैट इज कि अगर आपकी सालाना इनकम 10 करोड़ है, या मैं मान लेता हूं कि महीने की इनकम अगर आपकी 10 करोड़ है, तो आपको सरकार को 5 करोड़ देना होगा टैक्स के रूप में। दिस इज द टैक्स सिस्टम इन दिस इंडिया। This is the rate of tax in this India. कि मासूमों की जान लेकर विरोध जता रही है, मासूमों की जान लेकर विरोध जता रही है। ये भीड़ खुद को शोषित बता रही है, ये भीड़ खुद को शोषित बता रही है। भारत माता की वंदे वंदे हिंदुस्तान हिंदुस्तान। धन्यवाद धन्यवाद। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे सभी प्यारे देशवासियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दिस इज मे अली, आई एम द मेंबर एंड लीडर ऑफ अखंड भारत पार्टी। You know, we live in India, and in India, Hindu, Muslim, Sikh, Isai, everyone live each other with brotherhood. It is the symbol of Akhandata. It is the symbol of Akhand Bharat. But you know, the opposition party want to divide us. The opposition party want to divide us on the basis of casteism. On the basis of casteism, so I want to say some lines. For the opposition party. अगर खामोश होता हो तो गैरत मार डालेगी, अगर खामोश होता हो तो गैरत मार डालेगी, अगर सच बोल दूं तो ये हुकूमत मार डालेगी, अगर सच बोल दूं तो ये हुकूमत मार डालेगी। और बहुत होशियार रहना है हम हिंदू मुसलमानों को, बहुत होशियार रहना है हम हिंदू मुसलमानों को, वरना आपस में लड़ा के ये सियासत मार डालेगी, वरना आपस में लड़ाकर ये सियासत मार डालेगी। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, so I want to say that today is a very important day. Today is a election day, so you can decide the best leader because you are a voter. So your vote is your power. Your vote is your voice. So you can decide the best leader. You know, many parties say many promises. So you don't think, you can think who is the best. So you choose the Yuva leader and you choose the best educated leader. So first of all, I want to introduce my honorable president, Mr. Kartike, who is the president of Akhand Bharat Party. He is a very educated and a youth leader. He is a very polite person. He is very polite person. He believes in simple living and high thinking. He believes in simple living and high thinking. And you know, at this time, a youth can understand the pain of youth. You know, at this time, the many youth are unemployment. Many youth are uneducated because the ruling party do not provide the best education. The ruling party do not provide the best employment. Because you know why? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज। अगर ये जनता पढ़ लिख गई तो इन नेताओं के लिए बड़ी समस्या हो जाएगी। अगर ये जनता पढ़ लिख गई की भारत माता की वंदे वंदे। भाइयों और बहनों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। यहाँ उपस्थित सभी लोगों का मैं हृदय की गहराइयों से स्वागत करती हूँ। वो लूट रहे हैं सपनों को, खामोश में कैसे हो जाऊं। वो लूट रहे हैं सपनों को, खामोश में कैसे हो जाऊं। वो बेच रहे हैं भारत को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं। वो बेच रहे हैं भारत को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं। Hi, I am Shreya Tripathi and I am the member of Akhand Bharat Party. Firstly, I want to explain you why we are all collect here. We all are collect here for
choosing best president for our India. Now, I am telling about our party. Our party is Akhand Bharat Party. Our party president is Mr. Kartikeya Srivastava, and our party motto is सबका साथ सबका विकास. जब हम सबको साथ लेकर चलेंगे तभी हम एक विकसित भारत की कल्पना कर सकते हैं. In this time, ruling party's president is not thinking about peoples. We saw ruling parties 5 years. In 5 years, no one vacancy is available. In 5 years, unemployment rate is increases day by day. Even this government is not taken any action for education system. आखिर पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया. Government not think about women and senior citizens. जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हम यहाँ लोकतंत्र के पर्व को मना रहे हैं. So now this is the time for change. And if you want to see a developed India, then you definitely change. You should give chance to ABP for making better India. So without wasting your time, I wanted to call my president, Mr. Kartikeya Srivastava. For our youth leader, I say some lines in Hindi. विकास से उन्नति की गति को बढ़ा सकते हैं. विकास से उन्नति की गति को बढ़ा सकते हैं. देश में बदलाव तो युवा नेता ही ला सकते हैं. Now my honorable president is coming on the street. भारत माता के, भारत माता के. अखंड भारत पार्टी, अखंड भारत पार्टी. हिंदुस्तान, हिंदुस्तान. इनकलाब, इनकलाब. अब हमारे छोटू जो हमारे टीम के मेंबर हैं वो हमारे प्रेसिडेंट को गमछा पहना के उन्हें सम्मानित करेंगे. गमछा है हमारे देश की शान है, हमारे कल्चर में है. सो एवरीवन. And I want my president is a youth leader of India. So I want to say this. देश के युवा जब जीतेंगे चुनाव, देश के युवा जब जीतेंगे चुनाव तभी आएगा देश में बदलाव, तभी आएगा देश में बदलाव. So you should choose the best leader, educate leader and brilliant leader. Because you know एक ही उल्लू काफी है बर्बाद गुलिस्ता करने को. एक ही उल्लू काफी है बर्बाद गुलिस्ता करने को. अंजाम गुलिस्ता क्या होगा जब हर डाल पे उल्लू बैठा हो. अंजाम गुलिस्ता क्या होगा जब हर डाल पे उल्लू बैठा हो. So now my president will come and address you with your own speech. So before coming my president, I want to say some lines. इलेक्शन का नतीजा जब सामने अपने आएगा, इलेक्शन का नतीजा जब सामने अपने आएगा, नया भारत उदय होगा, नई सरकार आएगी. नया भारत उदय होगा, नई सरकार आएगी. So welcome to my president. Please come and address the people. आप तो बस एक किरदार हैं. आप तो बस एक किरदार हैं. अपनी अहमियत पहचानिए वरना एक दिन कहानी से निकाले जाएंगे. वाह. Hi, I am Kartikeya and I am here to support our own party, that is अखंड भारत पार्टी. एक्चुअली आप सभी ने अभी तक बहुत से लोगों को सुना होगा और उस बात को, उस वाक्यों को सुन करके आपके खून में उबाल आया होगा. लेकिन मेरा कुछ सवाल है कि बातें बड़ी बड़ी, वादे बड़े बड़े, सर काम क्यों छोटा रह जाता है. ये सवाल मेरे मन में आता है. तो एक्चुअली आवर पार्टी वर्क्स ऑन ट्रिपल ई. आप सभी ने अभी एक रिसेंट में एक मूवी आई थी, आप सभी ने जरूर देखा होगा और वो मूवी थी RRR. बट हमारी पार्टी वर्क करती है ट्रिपल ई पर, EEE. नाउ व्हाट इज ट्रिपल ई? एक्चुअली वी वर्क ऑन इक्वालिटी, एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशन. So these are, so actually as a student, we are all a student and we all are here to support what is the right for our country, what is right for our future. सभी ने आरक्षण की बात की, सभी ने सभी को संबोधित किया. किसी ने किसानों को संबोधित किया, किसी ने महिलाओं को संबोधित किया. सर किसी ने इक्वालिटी की बात नहीं की.
इक्वालिटी हमारे देश में अगर नहीं होगी तो क्या होगा? हमारा फ्यूचर इस बात पर डिपेंड करता है कि क्या हम समान हैं। अगर हम समान हैं तो हम अपने देश को बहुत आगे ले जा सकते हैं। So actually equality is very important for our country. I think that we should always respect everyone. Nowadays if you go any backward area, if you see backward villages, the peoples are not getting respect. I think that it is not good. आप एक बार जाकर के उनके घर में देखिए कि उनके घर में चूल्हा जला या नहीं जला। मंच पर आकर के पार्टियों को संबोधित करना बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे लगता है कि आप उन नेताओं को वापस उस गली जाते हुए नहीं देखेंगे जो उस गली जाते हैं और दाल रोटी खाते हैं और कहते हैं कि हम आपके बहुत बड़े शुभचिंतक हैं। लेकिन मेरा कहना ये है कि सर इलेक्शन के बाद, आफ्टर विनिंग द इलेक्शन, वेयर यू गो, आप अपनी प्रॉपर्टीज, करोड़ों की प्रॉपर्टीज में चले जाते हैं वापस और कभी उस मोड़ वापस नहीं आते। हर बात मुझे जब ये मैं बात सोचता हूँ, मुझे गाना याद आता है, क्या उस गली में कभी तेरा जाना हुआ, बताऊं तुम्हें क्या मेरे साथ क्या क्या हुआ। Actually, this is a voice of common people of India. This is voice of future of India, youth of India, women and farmers voice is this. Actually, मैं आप सभी के सामने ये बातें क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि किसी ने भी समानता की बात नहीं की, तो मुझे बहुत दुख हुआ इस बात का। अब मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि हमारी पार्टी जो इक्वालिटी पे बिलीव रखती है, मैं आप सभी से एक बात कहना चाहता हूँ कि वी आर नॉट द पार्टी विच इज अगेंस्ट द रिजर्वेशन, वी आर द पार्टी हु सपोर्ट्स द रिजर्वेशन। बट रिजर्वेशन के बाद भी ऐसा क्या हो रहा है कि लोगों को सम्मान नहीं मिल रहा। उसका रीज़न ये है कि हम उनको उस नज़र से देख रहे हैं, हम उस बेसिक, उस ग्राउंड लेवल पर जा करके कभी भी ये चेक नहीं करते, उनको उस सम्मान की दृष्टि से नहीं देखते, हम उन्हें बहुत ही नीच दृष्टि से देखते हैं, जो कि गलत है। So I support reservation, but I also support the equality. So अब मेरा दूसरा जो point है वो है youth. Actually nowadays you are saying that a lot of people in India are facing a lot of problems like paper leak, like unemployment. Actually, as a student, we should talk about unemployment, we should talk about education, we should talk about our future, we should talk about the youth, we should talk about the farmers of India, we should talk about the women of India. Why we are not talking about these things? Why we are talking about that भारत ने ये कर लिया? पहली पार्टी ने ये कहा कि भारत तीसरे नंबर पर है सेना के मामले में, बट मैं कहना चाहता हूँ कि जरा गूगल करके देखिए, भारत चौथे नंबर पे है। और दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि बात तीसरे या चौथे की नहीं है, बात है कि व्हाट इज द रीजन व्हाई वी आर नॉट एट द नंबर 1 पोजीशन। हम क्यों नंबर 1 पर बनने की नहीं सोच रहे हैं? हम क्यों इसको बहुत बड़ा गौरव मान रहे हैं कि हम 3rd पोजीशन पर हैं? हमें इसे बहुत बड़ा गौरव नहीं मानना चाहिए कि हम 3rd पोजीशन पर हैं या हम 4th पोजीशन पर हैं। हम 1st पोजीशन पे क्यों नहीं है? ये हमें आगे बढ़ाएगा, ये है हमारे देश का फ्यूचर। हमारे देश की जो युवा नेता हैं सभी हमारे साथ हैं। आपने देखा होगा कि किसी भी पार्टी में किसी भी छोटे बच्चे को ये मौका नहीं दिया गया, बट वी आर द पार्टी, वी आर दैट वन हु गिव द चॉइस टू एवरीवन। लोगों ने महिलाओं का सपोर्ट करा और वुमेन का सपोर्ट करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन सर और मैम, ऐसे लोग, ऐसे नेता तब कहाँ चले जाते हैं जब औरतों को प्रताड़ना होती है और उन्हें एक सही न्याय नहीं मिलता। वो चिल्लाते रह जाते हैं, भटकते रह जाते हैं। ना सिर्फ वुमेन, बल्कि आप देखेंगे तो बहुत सारे यूथ हैं, बहुत सारे इस देश के जवान हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें न्याय नहीं मिल रहा। हम न्याय की मांग क्यों नहीं कर रहे हैं? हम किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को या एक पर्टिकुलर सदस्य को या एक पर्टिकुलर रिलीजन को, एक पर्टिकुलर कास्ट को क्यों सपोर्ट करें? हम एक हैं, हमारी पार्टी एक है, हम सब एक हैं, हम आप एक हैं, हम इक्वालिटी में बिलीव रखते हैं, तो हमें एक इक्वल न्याय की ज़रूरत है। तो सिर्फ ये कह देना कि हम विमेन एम्पावरमेंट लाएंगे या विमेन एम्पावरमेंट ला रहे हैं, सिर्फ इससे विमेंस को पावर नहीं मिल रही, इससे विमेंस एम्पावर नहीं हो रही, सिर्फ इससे नहीं हो रही, बल्कि हमें ये ध्यान देना चाहिए कि बेसिक जो नीड है, जो ग्राउंड लेवल पे चीज़ें, जो न्याय उन्हें नहीं मिल रहा, क्या उसके पीछे भी आप ही का हाथ है?
क्या ये सवाल हमारे मन में नहीं उठना चाहिए? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैं कहने को तो इस पार्टी का लीडर हूं, लेकिन मैं आप में से ही एक हूं, और मेरे मन में बहुत से सवाल हैं एज एन अपोजिशन पार्टी जो इस रूलिंग पार्टी ने नहीं दिया हमें। हमारे देश के नेताओं ने बहुत करप्शन किया है, और अगर आपको इसका मैं कैलकुलेशन देता हूं तो ये शायद कैलकुलेटर भी फेल हो जाएगा। लोगों ने कहा कि हम वर्कर्स पे काम करेंगे। मुझे लगता है कि आपको ये पढ़ना चाहिए कि इससे एक साल पहले आईटी बॉम्बे की रेट आई कि 36% students did not get any job. So now you can judge from the IIT Bombay. Now you can think that that is the number one college, that is the number one organization in this country. And Google like companies, Google जैसी कंपनी भी वहाँ पे से एम्प्लॉयज को हायर करती हैं। आपको सोच के ये हैरानी होगी कि 36% लोगों को वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला किसी भी कंपनी में। तो ये क्यों ऐसा है, मुझे ये समझ कभी नहीं आया। नाउ आई विल टॉक अबाउट पेंशन स्कीम। मुझे लगता है कि ये एक ऐसी चीज़ है जो हमारे बीच होकर भी अनदेखी है लोगों से। लोग इस पे कभी क्यों नहीं चर्चा करते? क्योंकि अगर आप देखें तो जो बुढ़ापे का सहारा है वो बेटा या बेटी नहीं है, वो है पेंशन। एंड आप अगर देखें तो, और अगर आप देखें आपको ये महसूस होगा कि इतने सारे ऑर्फेन्स, इतने सारे जो अनाथ आश्रम हैं, ये क्यों भरे पड़े हैं? ये इसीलिए भरे पड़े हैं क्योंकि हमारा माइंडसेट वैसा है। और पेंशन स्कीम नहीं है, बच्चों ने घर से धक्के मार करके निकाल दिया क्योंकि वो किसी काम के नहीं है। सो वी आर नॉट सपोर्टिंग दैट कि हम पेंशन देंगे तो वो उन्हें घर में रखेंगे। वी आर सपोर्टिंग दैट कि हमें एक अच्छा एजुकेशन, एक अच्छा एम्प्लॉयमेंट, इक्वालिटी और एक अच्छा न्याय प्रणाली हमें खड़ा करना है हमारे देश के लिए, ताकि हमारे देश की उन्नति हो सके, हमारा देश आगे बढ़ सके। हमें कभी भी किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट नहीं करना चाहिए, किसी पर्टिकुलर मुद्दे को सिर्फ सपोर्ट नहीं करना चाहिए। जैसे हमारे एक अपोजिशन ने कहा कि मणिपुर में जो भी हुआ उसके लिए आपको बहुत दुख है, बट मुझे लगता है कि आपको ये रीज़न भी बताना चाहिए लोगों को कि मणिपुर में क्या हुआ, क्योंकि 99% पीपल को तो ये पता ही नहीं है कि मणिपुर में हुआ क्या। तो आप दुख कैसे मनाएंगे, आप शोक कैसे करेंगे? मुझे लगता है कि आप सभी को, I want to say that the problem is what is ground level. हम ग्राउंड लेवल पे चीज़ों को देख नहीं रहे हैं, हम नेताओं की भाषाओं में फंस जा रहे हैं। वो नेता हमसे नारे लगवा रहे हैं, हमसे वो बातें कह रहे हैं, हमसे पूरा वो समर्पण चाह रहे हैं, लेकिन वो हमसे ये नहीं कह रहे कि हम आपको पूरे आपके सम्मान देंगे, आपको इक्वालिटी देंगे, आपको बेस्ट एजुकेशन देंगे, आपको एम्प्लॉयमेंट देंगे। वो ग्राउंड लेवल पे तो बात ही नहीं कर रहे। तो हमें ये ज़रूर सोचना चाहिए। हमारी पार्टी हमेशा से इस बात को मुद्दा बना रखी है, लेकिन हमारी बातें लोगों को कभी पहुंची नहीं, क्योंकि अपोजिशन ने, जो रूलिंग पार्टी है, उसने हमारी बातों को हमेशा से दबाया है और दबाने का काम किया है और करते आ रहे हैं। मुझे लगता है कि ये बहुत ही शर्मिंदगी की बात है कि अगर हमारे देश का जो संसाधन है, जो हम आपको एक उदाहरण देते हैं। हमारे देश का सबसे बड़ा संसाधन क्या है? हमारे देश का सबसे बड़ा संसाधन है कि इस देश का युवा, इस देश की महिलाएं, इस देश का फार्मर, इस देश का जवान। तो सबसे बड़ा संसाधन ये है, और ये पार्टियां कभी इस बातों पर चर्चा नहीं करती। मैंने कल एक बहुत प्यारी और बहुत छोटी लेकिन बहुत गहरी एक बात कहीं इंटरनेट पे पढ़ा। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि सबसे खूबसूरत, सबसे महकता फूल कौन सा है? क्या आप जानते हैं? शायद आपका आंसर होगा कि रोज, या आपका आंसर हो सकता है लोटस, आपका आंसर हो सकता है लेवेंडर। बट मैंने पढ़ा और मेरी आंखें भर आई, और वो ये था कि सबसे खुशबूदार जो पुष्प है वो है रोटी। क्योंकि अगर हमारी पेट भरी है तो हम इक्वालिटी की बात करेंगे, अगर हमारी पेट भरी है तो हम रिलीजन की बात करेंगे, अगर हमारी पेट भरी है तो हम रिश्तेदारी की बात करेंगे, अगर हमारी पेट भरी है तो हम दोस्ती की बात करेंगे। लेकिन अगर हमारी पेट खाली है तो हम दोस्ती, यारी, रिश्तेदारी भूल जाएंगे और हम उस चीज़ को सपोर्ट करेंगे जो सही है। एंड दैट इज वॉट वी आर मेकिंग। हम वो पार्टी हैं जो इक्वालिटी में बिलीव रखते हैं, गुड एजुकेशन सिस्टम में बिलीव रखते हैं, एंड हम एम्प्लॉयमेंट में बिलीव रखते हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द नेशनल सिक्योरिटी। मैं हर बार ये सोच करके परेशान हो जाता हूँ कि ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी भी देश में कोई भी उग्रवादी घुस आता है और हमला करके हमारे देश के जवानों पे गोलियां बरसाता है, और इस देश में
उग्रवाद फैलाता है। मुझे ये सोच के बहुत आश्चर्य होता है, ये बिना करप्शन के कैसे हो सकता है, भ्रष्ट नेताओं के बिना कैसे हो सकता है। अगर रूलिंग पार्टी इतनी अच्छी है तो ऐसा कैसे हो जाता है कि कश्मीर की घाटी में कोई घुस आता है, एक बस को अगवा कर लेता है, एक बस पे अपना कब्जा बनाता है और उस बस के यात्रियों को अपने कब्जे में कर करके उन पे अपना हक जमाता है और उन पे हमला करता है। ये कैसे हो सकता है? बिना करप्ट लीडर्स के ये पॉसिबल ही नहीं है। मैं आप सभी के समक्ष एक बात कहना चाहता हूँ कि नेशनल सिक्योरिटी बहुत बड़ा इशू बन चुका है आज के टाइम पे रूलिंग पार्टीज का। रूलिंग पार्टी इज नॉट कंसिडरिंग दिस टाइप ऑफ थिंग्स very seriously, and this is very big issue and it will be much bigger if we will not control it. अगर हम इसे कंट्रोल नहीं करते हैं, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम, एक बहुत बड़ा नहसूड़ बन जाएगा आने वाले समय में, और जो कि एक बहुत दर्दनाक हादसा होगा। मुझे लगता है कि हमें नेशनल सिक्योरिटी पर काम करना चाहिए और हमारी पार्टी नेशनल सिक्योरिटी पर भी काम करेगी। पे लिखा कि सोच दमदार काम ईमानदार, अब की बार अखंड भारत पार्टी की सरकार। बहुत हुई देश में महंगाई की मार, अब की बार अखंड भारत पार्टी की सरकार। What now? These are the points which are not considered by the ruling party. Now what we will do? Why you should select us? आप सभी को हमें क्यों सेलेक्ट करना चाहिए? हम कौन सा ऐसा तीर उखाड़ लेंगे? हम आप सभी को ये विश्वास दिलाते हैं कि हम इक्वालिटी में बिलीव रखते हैं और हम इक्वालिटी सिर्फ रिजर्वेशन नहीं, हम इक्वालिटी ग्राउंड लेवल पर लेकर के जाएंगे। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो मिडिल क्लास फैमिली से आते होंगे, बट आप ये चीज़ देखते होंगे कि जब भी कोई पॉलिटिकल लीडर आता है, बड़ी सी गाड़ी में आता है, लेकिन वो सिर्फ इलेक्शन के टाइम ही आपके घर में आपके पैर छूने आएगा। क्यों? उसके बाद, जीतने के बाद क्यों नहीं आता? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो आपके मन में खटकना चाहिए एज एन स्टूडेंट, एज एन वोटर। तो मैं एक सिर्फ अपनी पार्टी को सपोर्ट करने नहीं आया, मैं हर उस पार्टी को अपोज करने आया हूँ जो पार्टी ये कहती है कि वी विल गिव रिजर्वेशन। सर, व्हाई वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इक्वालिटी? व्हाई वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इक्वालिटी, सर? नाउ second thing is we are not giving facilities to the farmer, we are not giving good medical facilities, we are not providing good education system. आपका बेटा अगर है, आपका बच्चा है अगर, तो आप यही चाहेंगे कि वो प्राइवेट स्कूल में पढ़े, कभी भी गवर्नमेंट स्कूल से नहीं पढ़े। लेकिन आज जब एयरटेल, जब वोडाफोन जैसी कंपनियां आज जब अपना रंग दिखा रही हैं, तो आपको ये समझ आ रहा होगा कि बीएसएनएल हमारे लिए कितना जरूरी है। ऐसे ही आपको तब समझ में आएगा जब ये प्राइवेट स्कूल्स अपनी मनमानी करेंगे, लेकिन आपके पास कोई चारा नहीं होगा गवर्नमेंट स्कूल्स के अलावा। तो अपनी आवाज हमें उठाना बहुत जरूरी है। सब स्कूल में सिर्फ बात इतनी ही नहीं है। अगर आप एयर इंडिया की बात करेंगे, क्यों एयर इंडिया आज के टाइम पे फ्लॉप हो चुका है? आप कभी सोचेगा कि भारत में एक ही तो सरकारी कंपनी थी, वो भी बंद हो गई, वो भी बिक गई। उसका रीजन कोई पर्टिकुलर पार्टी नहीं है, उसका रीजन है आपका डिसीजन गलत है, आप गलत पार्टी को चुन रहे हैं। आप हमारी जैसी पार्टी को चुनिए, हम ये सरकारी दौर फिर से लाएंगे। हम ये आपको विश्वास दिलाते हैं, हम इक्वालिटी में बिलीव रखते हैं। मैं बार बार इक्वालिटी कह रहा हूँ क्योंकि इक्वालिटी बहुत बड़ा टर्म है, बहुत गहरा शब्द है, कहना बहुत छोटा है, लेकिन इसको निभाना बहुत जरूरी है। और मैं आपको कहना चाहता हूँ कि वी विल मेक गुड एजुकेशन सिस्टम। व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट एजुकेशन सिस्टम, व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट, आप अगर ग्राउंड लेवल पे जाइए और सरकारी स्कूल्स को देखिए, वहां पे टीचर्स पढ़ा नहीं रहे। दे आर नॉट टीचिंग बिकॉज दे नो एट द एंड ऑफ द मंथ दे विल गेट अ फिक्स सैलरी। दैट इज द प्रॉब्लम, एंड नॉट इवन अ सिंगल सर्वे इज बीइंग हेल्ड नाउडेज। द प्रॉब्लम इज कि कोई सर्वे नहीं हो रहा, कोई ये देख नहीं रहा कि हमारी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ये सपोर्ट नहीं कर रही कि हमारे देश के टीचर्स, हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम में क्या असर पड़ रहा है। ऐसे भद्दे लोगों का आना क्या दुख दे रहा है हमें। अब मैं आप सभी के सामने एक बात और कहना चाहता हूं कि अभी एक बहुत बड़ा मुद्दा चला है पेपर लीक का। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा, एज आई टॉक अबाउट पेपर लीक, एक्चुअली आई वांट टू टॉक अबाउट व्हाट इज पेपर लीक, व्हाई इट इज बीइंग हेल्ड। अगर आप सीबीआई की जांच देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि 99% जो बच्चे आपको मिलेंगे, जिन लोगों को ग्रेस मार्क्स दिया गया इन द पेपर ऑफ नीट, दे आर द चिल्ड्रंस ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स। अगर ये रूलिंग पार्टी इतनी अच्छी है, या ये जो दूसरे झूठे वादे करने वाली जो पॉलिटिकल पार्टी है ये इतनी अच्छी है, तो इनके बच्चे इतने बड़े पदों पर पहुंच कैसे रहे हैं? हमने कभी ये जानने की जरूरत नहीं थी।
terrorism, as I talk about, it is a very big problem, and it will be not. It is not only a big problem for this time. It will be it will be much bigger problem as it is right now, and it should be controlled, and there should be a law of strict law that should be every political leader should be followed. Now I want to talk about हर एक पॉलिटिकल लीडर आपको कहता मिल जाएगा कि मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा। सर मैं पूछना चाहता हूँ कि किसी भी पॉलिटिकल लीडर का बेटा या बेटी सेना में क्यों नहीं भर्ती होते, आर्मी क्यों नहीं ज्वाइन करते? क्योंकि अगर आपके अंदर इतना जोश है तो आप आर्मी में क्यों नहीं जाते? हमारी पार्टी एक रूल लाएगी कि अगर हमारी पार्टी जीतती है तो हमारे पार्टी में जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी मेंबर हैं, उन सब का जो एक घर वाला होगा, कोई भी एक, एटलीस्ट एक, वो जरूर आर्मी में होना चाहिए। अब मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूँ कि एक शायरी मैंने पढ़ा था कि सुबह पंछियों का एक कारवां निकला, लेकिन जब सोचता हूँ तो हुआ एक गम कि जब शाम हुई तो उनमें से पहुंचा एक कम। मुझे लगता है कि आपको ये सोचना चाहिए कि ये जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं ये हमारे देश को किस तरीके से खोखला कर रहे हैं, जो गलत पॉलिटिकल लीडर्स हैं किस तरीके से हमारे देश को खोखला कर रहे हैं। आप अगर इस बात को गौर फरमाएं, मैं कहना चाहता हूं कि अग्निवीर योजना ये सही नहीं है। अगर आप इस चीज़ को सोचें, 4 साल बाद वो जवान कहाँ जाएगा, मुझे आप बताइए। ये एक बहुत बड़ा इशू है। इस तरीके से युवाओं में जो सेना में जाने का जो जोश है उस पर बहुत बुरा असर पड़ा है, और मुझे लगता है कि ये बहुत गलत है और इसे बदला जाना चाहिए, इसे हटाना जाना चाहिए। और वी विल वर्क ऑन इट। आई विल रिमूव दिस अग्निवीर योजना।